اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے دشمن کی تدبیروں سے بچنے کا طریقہ۔ عزیزان من، شیطان انسان کا کھلا یعنی واضح دشمن ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے ذریعے داؤ یا چال یا تدبیر کروائی تھی۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے خلاف داؤ یا تدبیر چلیں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا یعنی واضح دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ لوگوں کے خلاف بری چالیں یا بری تدبیریں کرنے والے مجرم ہر بستی ہر قریہ میں ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انعام میں واضح ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی یعنی قریہ میں اس کے مجرموں کے سرغنہ ہوئے کہ اس میں داؤ یا تدبیریں چلیں، اور داؤ چال نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں۔ کافر مجرم ایسے گھٹیا ہوتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف بھی مکر یعنی تدبیریں کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انفال میں واضح ہے کہ اور اے محبوب، یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر یعنی تدبیریں کرتے تھے کہ تمہیں بند کر دیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر یعنی تدبیر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ لعنتی فرعون بھی بڑی بڑی تدبیریں کرتا تھا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ تو فرعون پھرا اور اپنے داؤ فریب یعنی تدبیریں اکٹھے کیے پھر آیا۔ عزیزان من، شیطان کی تدبیروں سے یا شیطان کے سرغنوں کی تدبیروں سے یا فرعون جیسے حکمرانوں کی تدبیروں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کی 10 تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید بھی ہو سکتی ہیں، ہم صرف 10 کو بیان کریں گے۔ نمبر 1 اور نمبر 2، صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن کی تدبیروں سے بچنے کے لیے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں، اور تم صبر یعنی جدوجہد اور تقوی یعنی قوانین اختیار کرو تو ان کا داؤ تدبیر تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ بے شک ان سب کے کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔ ہمیں پتہ یہ چلا کہ دشمن کی داؤ تدبیر مکر سے بچنے کے لیے اپنے کام کے لیے صبر یعنی جدوجہد ہر حال میں جاری رہنا چاہیے، اور یہ صبر یعنی جدوجہد صرف اور صرف تقوی یعنی قوانین کے مطابق ہونے چاہیے۔ قوانین سے ہٹیں گے تو پھنس جائیں گے۔ نمبر 3، توکل کرنا۔ توکل کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین پر بھروسہ کرنا۔ جب آپ اپنی جدوجہد کے لیے تقوی یعنی قوانین اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے ان قوانین پر ہر حال میں توکل یعنی بھروسہ بھی کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں فرمایا ہے کہ تم سب مل کر میرے خلاف داؤ تدبیر چاہو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر توکل یعنی اس کے قوانین پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، صبر، تقوی اور توکل دشمن کی تدابیر سے بچاتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے راز غیروں کو نہ بتاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو،
गैरों को अपना राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करते। उनकी आरजू है जितनी ईज़ा तुम्हें पहुंची, बैर या दुश्मनी उनकी बातों से झलक उठी, और वो जो सीने में छुपाए हैं और भी ज़्यादा बड़ा है। हम निशानियां खोल कर सुना दी अगर तुम्हें अकल हो। अजीज़ मन, इसलिए हमें दुश्मन की तदबीरों, मकर, दौ चाल से बचने के लिए हर हाल में अपने राज ज़हर नहीं करने चाहिए। नंबर 5, आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। अल्लाह ताला ने बताया है कि आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए, वरना इंसान बुज़दिल बन जाता है। जैसा कि सूरत इनफाल में वाज़ेह है कि अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो, आपस में झगड़ो नहीं कि फिर बुज़दिली करोगे और तुम्हारी बंधी हुई हवा यानी बंधी हुई सोच जाती रहेगी। सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र वालों यानी जदोजहद करने वालों के साथ है। नंबर 6, दुश्मन को खौफजदा करने के लिए क़ुव्वत हासिल करो। ये अल्लाह ताला का एक बहुत अहम हुक्म है कि दुश्मन से जीतने के लिए क़ुव्वत, घोड़े पहले से तैयार रखो, जैसा कि सूरत इनफाल ही में फरमाया है कि और उनके लिए तैयार रखो जो क़ुव्वत तुम्हें बन पड़े, और जितने घोड़े बांध सको कि उनसे उनके दिलों में धाक बिठाओ जो अल्लाह के दुश्मन हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं, और उनके सिवा कुछ और या दूसरे को दिलों में जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह उन्हें जानता है। नंबर 7, हमेशा हक पर रहकर बातिल का भेजा निकाल दो। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया गया है कि हम हमेशा हक पर रहें, क्योंकि हक ही से बातिल का भेजा निकाला जा सकता है, यानी हक से बातिल को शिकस्त दी जाती है। जैसा कि सूरत अंबिया में वाज़ेह है कि बल्कि हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं तो वो उसका भेजा निकाल देता है, तो जब भी वो मिट कर रह जाता है। नंबर 8, दुश्मन की तदबीरों के मुकाबले में आप भी खुफिया तदबीरें करें। अल्लाह ताला ने अपनी मिसाल देकर हमें समझाया है कि दुश्मन के ख़िलाफ़ हमें भी खुफिया तदबीर करनी चाहिए, जैसा कि आले इमरान में फरमाया है कि और काफरों ने मकर यानी तदबीरें की, और अल्लाह ने उनके हलाक की खुफिया मकर यानी खुफिया तदबीरें फरमाई। अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। अजीज़ान मन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुफ़ार ने खुफिया तदबीर की कि नौज़ बिल्लाह आपको शहीद किया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह के हुक्म से खुफिया तदबीर के ज़रिए अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को सुलाया और ख़ुद रातों रात हिजरत कर ली थी, जिसका ज़िक्र सूरत इनफाल में है कि ऐ महबूब, याद करो जब काफिर तुम्हारे साथ मक्कर यानी तदबीर करते थे कि तुम्हें बंद कर लें या शहीद कर दें या निकाल दें, और वो अपना मक्कर तदबीर करते थे। अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर फरमाता था, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है। इसलिए हम सबको दुश्मन की तदबीरों से बचने के लिए भी खुफिया तदबीरें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सुन्नत और हुक्म है। नंबर 9, बदी की तदबीरें कमज़ोर और हमेशा तबाह होती हैं। हमें याद रखना होगा कि बदी की तदबीरों को कामयाबी और फलाह नहीं बल्कि तबाही है। सूरत निसा में फरमाया, ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं और कफ़ार शैतान की राह में लड़ते हैं, तो शैतान के दोस्तों से लड़ो, बेशक शैतान का दौ तदबीर कमज़ोर है। सूरत अंबिया में फरमाया, उन्होंने बुरी तदबीर का इरादा किया तो हमने उन्हें सबसे बढ़कर खसारे पाने वाला कर दिया। सूरत अल मोमिन में काफरों की दो तदबीर गुमराही में बताई है, और काफरों की तदबीर नहीं मगर गुमराही। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि
काफरों की दौ पेच गुमराही होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में बुराई की तदबीरें हमेशा खुद को तबाह बर्बाद करती हैं और गुमराही में और खसारे में ले जाती हैं। नंबर 10, अल्लाह ताला से दुआ के बुरी तदबीर से बचाए। हमेशा हमें अल्लाह ताला से दुश्मन की तदबीरों से बचने के लिए दुआएं ज़रूर मांगनी चाहिए, जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख़वातीन की तदबीरों से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे, जैसा कि सूरत यूसुफ़ में है कि यूसुफ़ ने अर्ज़ कि ऐ मेरे रब, मुझे कैद खाना ज़्यादा पसंद है उस काम से जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं, और अगर तू मुझसे उनका मकर यानी तदबीर ना फेरेगा तो मैं उनकी तरफ माइल हूँगा और नादान बनूँगा। तो उसके रब ने उसकी सुन ली और उससे औरतों का मक्कर तदबीर फेर दिया, बेशक वही सुनता जानता है। आखिर में हम अपनी बातों को सम अप कर लेते हैं कि दुश्मन की या बुरी तदबीरों से बचने के लिए 10 काम करने हैं। नंबर 1, सब्र यानी हर हाल में जद्दोजहद जारी रखनी है। नंबर 2, तकवा यानी कवानीन इख्तियार करने हैं। नंबर 3, तवक्कुल यानी अल्लाह ताला के कवानीन पर हर हाल में भरोसा करना है। नंबर 4, अपने राज गैरों को नहीं बताने हैं। नंबर 5, आपस में झगड़े नहीं करने हैं। नंबर 6, दुश्मन को खौफजदा करने के लिए हर किस्म की ताकत कुव्वत हासिल करनी है। नंबर 7, हमेशा हक के साथ बातिल से मुकाबला करना है। नंबर 8, दुश्मन की तदबीरों के मुकाबले के लिए खुद भी तदबीरें करनी है। नंबर 9, बुरी तदबीरें हमेशा कमज़ोर और तबाह होती हैं। नंबर 10, बुरी तदबीरों से बचने के लिए हमेशा अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। आखिर में हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।